Hello, very good evening. Very good evening, everyone. Very good evening. Good evening, Manpreet. Sure. So today is most probably our last class for Russian Revolution, and we will try to end the class today. We'll try to finish it. So this is not part two. This is part three. So make a correction on the top that this is not part two. This is part three. Okay. All right. So everyone quickly join in so that we can start the class. Chalo, very quickly tell me if I am audible to you. I am clearly audible to you. If you can hear me, then please say yes in the group. Just confirm that you can hear me properly. I am visible to you as well. Okay. So I believe I am audible. Those of you who are online, please confirm. Okay. Perfect. All right. So today is we are what we are going to discuss is till now what we have discussed. Let's see. So we established a timeline, if you remember, right? And in this timeline, we saw we saw the date 1898 when you see the Socialist Party has been established and Socialist Democratic Party, right? And from here we saw 1905, that was Bloody Sunday, Bloody Sunday, and this is called the Revolution of 1905. Here you see Father Gapon and his story, what happened. Then we see 1914, the start of the World War, and the problem for all this, everything here. Then we see in 1917, in February, how the revolution started. So here we saw that the monarchy ended, the king, the Tsar, he abdicated his post. He left his post as king, right? और यहाँ पे establish हो गया आपका provisional government. और यहाँ पे एंट्री होती है आपके लेनिन की. ही कम्स बैक फ्रॉम एग्जाइल और अपना देता है वो April thesis के 3 points we discussed it yesterday, and I hope it is clear to you, right? After this we saw the October Revolution. So finally in October, after 9 months of this provisional government, Lenin decides to overthrow this government, and he successfully does it. यहाँ पे एक MRC बनाई गई थी, the Military Revolutionary Committee, which was able to successfully remove this provisional government and establish a socialist government in Russia, right? So Russia में यहाँ पे socialist government बन चुकी है, and today we are going to see what happened after October 1970. So this is a very important question also that you will see in your examination. Changes, explain the changes after October 1917 in Russia. So Russia में क्या changes हुए after 1917? So near about 10 to 12. So tomorrow, can you explain short summary of it, Russian Revolution? Sure, sure. I'll cover it in short.
the Russian Revolution. Don't worry, I'll cover it tomorrow. It will be a brief class covering from end to end, 1 hour. Okay, sure. But what I was trying to do is I was trying to cover the geography a little bit for you, like the drainage chapter. So that will be useful for you. Okay, but let's see how it goes. I will let you know. I will inform you in the group. Okay, in the WhatsApp group that we have, I will inform you. Those of you who want to join the WhatsApp group, you can scan the code that I have put up on the main screen, or you can see in the video. You will see that QR code, scan it, and you will be able to join the WhatsApp group. Okay. Now, changes after 1917 in Russia. So near about 10 to 12 changes we will see. 10 to 12 changes. We are going to see what happened after Russia and what are the changes that this socialist government of Bolsheviks is going to bring in Russia. Okay. So let's see the changes. So when we are seeing the changes, we will make a graph and a chart, and then we will see the changes. So okay, so the first change, I will name it as A. The first change that happened was as promised or as asked by Lenin in his April thesis. He demanded one very important thing, and he delivered his promise. That was industrialization, industries of बैंक का nationalization. यानी कि nationalization, nationalization of banks and industries when in 1917. So this is the first change that you will see in Russia after October 1917. So this is a very important question जिसके 99% chance होते हैं आपके एग्जाम में आने के, right? So this is the first point that you will write as per the April thesis. As per the April thesis, as promised by Lenin, he nationalized all the banks. Okay. Second change, very important change. The second change that he promised was land was declared. Land was declared public property, sorry, social property. A social property. Land was declared a social property. That means now peasants are allowed to seize land. Seize land. कि भाई जिसको जहां जमीन दिख रही है और जिसको जितना चाहिए वो सारी की सारी जमीनें आप सीज कर लो. ओके, सारी जमीनें आप सीज कर लो. So this was also promised by Lenin in the April thesis. He was asking कि लैंड जो है वापस मिलनी चाहिए किसे, किसानों को मिलनी चाहिए. और यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनेगा आगे जाके लेनिन के लिए. वी विल सी अबाउट इट. ओके, तो इसने क्या बोला, लैंड को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया और पेजेंट्स को क्या बोला, सीज करो लैंड. आपको जहां दिख रहा है यू सीज इट. अब जमींदार के पास लैंड मत छोड़ो, आप अपने कब्जे में ले लो लैंड्स. ओके. सी, द थर्ड पॉइंट. सी, सी इज द ओल्ड एरिस्टोक्रेटिक टाइटल्स वर बैंड. यानी कि जितने भी टाइटल्स थे, टाइटल्स वर बैंड. ओके, जैसे जार और जितने भी एरिस्टोक्रेटिक टाइटल्स हैं, प्रिंस, है ना, ये सारे टाइटल्स बैन कर दिए गए. ओके, ऐसा कोई टाइटल नहीं रहेगा. ओके. नाउ फोर्थ चेंज दैट यू विल सी इज यूनिफॉर्म चेंज. न्यू यूनिफॉर्म ड्रेसेस. भाई नई ड्रेसेस लाई गई, यूनिफॉर्म को चेंज कर दिया गया. क्यों चेंज किया गया? क्योंकि अभी तक जो यूनिफॉर्म हुआ करती थी अक्रॉस द कंट्री डिफरेंट हुआ करती थी. अगर आप ईस्टर्न साइड रशिया का देखो तो थोड़ा मंगोलिया और कोरियन इन्फ्लुएंस हुआ करता था. सेंटर में देखते हो तो आपको थोड़ा एशियन इन्फ्लुएंस दिखता है. अगर आप वेस्टर्न साइड में देखते हो तो थोड़ा सा यहाँ पे भी अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग एथनिसिटी के लोग हैं, सबका यूनिफॉर्म और ड्रेस अलग है. तो इन्होंने
सबसे पहला चीज किया, यूनिफॉर्म ड्रेस किया, ड्रेस कोड बना दिया, मेन शुड वेयर दिस, वेमेन दे शुड वेयर दिस। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि आपके अंदर क्या आएगी? यूनिटी आएगी, क्योंकि जब ड्रेस एक जैसा होने लगेगा तो यू विल फील कि वी ऑल आर सेम, वी ऑल आर सेम, वी आर नॉट डिफरेंट, राइट? तो यूनिटी आनी आपकी शुरू हो जाएगी। ओके, इसके बाद फोर्थ पॉइंट, नाउ फिफ्थ पॉइंट, ई, फिफ्थ पॉइंट ई, पूरे रशिया में, रशिया को क्या बना दिया गया? वन पार्टी स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया, वन पार्टी स्टेट, यानी एक ही पार्टी होगी, एक ही पार्टी होगी, द कम्युनिस्ट पार्टी, द कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, एक ही पार्टी होगी, द कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, यहां तक क्लियर है? एक ही पार्टी होगी, द कम्युनिस्ट पार्टी। ऑलराइट, ओके, चल, देन एफ, नेक्स्ट पॉइंट, एफ, नेक्स्ट पॉइंट। तो ट्रेड यूनियंस जो थे, ट्रेड यूनियंस, ये सब पार्टी के कंट्रोल में है। जितने भी यूनियंस वगैरह, ग्रुप्स वगैरह बनाए गए थे, ट्रेड यूनियंस, इनको क्या किया गया? इनको पार्टी के कंट्रोल में सीक्रेट रखा गया, पार्टी कंट्रोल, ये पार्टी के कंट्रोल में ले लिए गए। यानी कि जितने भी, जो भी लोग रिवोल्ट कर रहे थे, अब आपने देखा ना अभी तक यूनियंस जो थे, फैक्ट्री के यूनियन जो हुआ करते थे, लेबरर्स के, मजदूरों की यूनियन हुआ करती थी, ये यूनियन ही तो रिवोल्ट किया करती थी। तो सबसे पहले तो इन ट्रेड यूनियंस को पार्टी के कंट्रोल में ले लिया गया। ओके, एक ये देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे हमने कितने पॉइंट्स डिस्कस कर लिए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, 6 points we have discussed. These are the 6 points. These are the 6 changes that happened after October 1917. Okay, so that is nationalization of bank industries in 1917. B was land was declared the social property as promised. Titles were banned. All the aristocratic titles were banned. Russia was declared as one party state. Okay, न्यू यूनिफॉर्म ड्रेसेस हैव बीन लॉन्च्ड, सबको यूनिफॉर्म ड्रेसेस दे दिए गए, एंड ट्रेड यूनियंस पार्टी के कंट्रोल में ले लिए गए। ओके, यहां तक क्लियर है? चलो, नेक्स्ट, अगेन, so after these 6 points, after these 6 points, let's see the seventh point, that is point number G. Okay, इसके बाद आपको चेंजेस क्या दिखेंगे? चेंज दिखेगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इंक्रीज्ड। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत अच्छे से इंक्रीज हुआ, काफ़ी इंडस्ट्री डेवलप हुई। ओके, इसके बाद एच, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। वी विल डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट्स इन डिटेल अभी। इकोनॉमिक प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। देन आई, नेक्स्ट पॉइंट आई। सो 8 पॉइंट्स हो चुके हैं, ये हमारा पॉइंट नंबर 9 है। इसके बाद एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम लाया गया, एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम, इसे इंट्रोड्यूस किया गया। स्कूलिंग सिस्टम में चेंजेस किए गए। ओके, स्कूलिंग सिस्टम में सिलेबस, करिकुलम, इनको चेंज किया गया। थोड़ा सोशलिज्म वाली भावना लाई गई, ताकि बच्चों के अंदर सोशलिज्म वाली क्या चीज़ है, इसे इनकलकेट किया जाए बच्चों के अंदर। ओके, देन वी विल सी पॉइंट नंबर जे। ओके, जे क्या किया गया? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्रेचेस, एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्रेचेस, क्रेचेस को एस्टैब्लिश किया गया।
ओके, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्रेचेस। क्रेचेस क्या है? व्हाट आर क्रेचेस? क्रेचेस मतलब जो फीमेल वर्कर्स थी इनके लिए किया गया था, ये याद रखिएगा, फीमेल वर्कर्स। तो फीमेल वर्कर्स जो होती थी, जो माएँ थी, मदर्स, वो अपने यंग बॉर्न बेबीज को जैसे मिल्क फीड करना है तो उसके लिए पब्लिक में नहीं कर सकती हैं, राइट? सो दे नीड सम प्लेस। तो बच्चों की देख रेख के लिए, छोटे बच्चों के लिए क्रेचेस, इन्हें क्रेचेस कहा जाता है। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रेचेस किया गया, क्रेचेस बनाए गए फैक्ट्रीज में, बहुत मात्रा में, भारी मात्रा में बनाए गए, हर जगह हर फैक्ट्री में बनाए गए। ओके, आफ्टर दिस लास्ट पॉइंट के, लास्ट पॉइंट के, कलेक्टिव फार्मिंग की गई, कलेक्टिव फार्मिंग की गई। एक नई टाइप की फार्मिंग इंट्रोड्यूस की गई जिसे हम कहते हैं कलेक्टिव फार्मिंग। ओके, इसे कहते हैं कलेक्टिव फार्मिंग। तो कितने पॉइंट्स हो गए हमारे? 8 पॉइंट्स, सॉरी 11 पॉइंट्स। Nationalization of bank industries in 1917, land was declared social property, titles were banned, रशिया वन पार्टी स्टेट बना दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया, न्यू यूनिफॉर्म ड्रेसेस लॉन्च किए गए, न्यू यूनिफॉर्म ड्रेसेस लॉन्च किए गए, ट्रेड यूनियंस पार्टी के कंट्रोल में आ गए, ट्रेड यूनियंस पार्टी के कंट्रोल में आ गए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया गया, एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम लाया गया, चेंजेस किए गए स्कूलिंग सिस्टम में, क्रेचेस बनाए गए, बहुत ज़्यादा क्रेचेस बनाए गए फॉर द बेनिफिट ऑफ फीमेल वर्कर्स इन फैक्ट्रीज, एंड कलेक्टिव फार्मिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। कलेक्टिव फार्मिंग इज रिलेटेड टू स्टालिन, ये आप याद रखेंगे, स्टालिन से रिलेटेड है आपका कलेक्टिव फार्मिंग। ओके, ये है आपका स्टालिन से रिलेटेड कलेक्टिव फार्मिंग। आई होप यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक नो डाउट? अगर डाउट हो तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस क्विकली, we'll try to finish as much as soon as possible. Okay, or we will try to cover at least some portion and we will do the remaining portion tomorrow also, there is no problem in that. Okay, चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर 1917 की, ये तो पॉइंट्स हो गए, ये हो गया क्वेश्चन आंसर कि आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से इसका आंसर लिखना है। ओके, आफ्टर दिस वी विल सी इन 1917 क्या हुआ, वी विल सी अबाउट द सिविल वॉर। ओके, वी विल सी अबाउट द सिविल वॉर। क्लियर? अब देखिए होता क्या है, 1917 में सिविल वॉर हो जाता है, यानी लोग आपस में लड़ने लग जाएंगे। कौन लड़ने लगेगा? तो बोल्शेविक्स। हुआ क्यों, क्यों हुआ ये सिविल वॉर, इस चीज को आप समझिए। बोल्शेविक्स जो थे, इन्होंने क्या स्टार्ट किया? इन्होंने किया रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अभी मैंने आपको बताया लैंड को पब्लिक प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी गई है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड कर दिया गया है, राइट? इसकी वजह से एक बहुत बड़ा इशू हुआ। क्या हुआ? रशियन आर्मी जो थी, 10th के लिए है क्या बेटा? ये 9th क्लास है, 9th क्लास का सिलेबस है। 10th का आपका नेशनलिज्म इन इंडिया मैं लाऊंगा अभी अगले हफ्ते। 10th क्लास का नेशनलिज्म इन इंडिया आएगा। दिस इज फॉर 9th क्लास, चैप्टर नंबर 2। ओके, रशियन रिवॉल्यूशन। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हुआ, इससे क्या हुआ? रशियन आर्मी जो थी, रशियन आर्मी, रशियन आर्मी क्या हुई? ये टूटने लगी, दे स्टार्टेड टू ब्रेक। ओके, रशियन आर्मी टूटने लगी। क्यों टूटने लगी रशियन आर्मी? क्योंकि अब अब लेनिन ने क्या डिक्लेयर कर दिया है कि भाई जिसको जहां जमीनें मिल रही हैं, यू गो अहेड, यू गो अहेड एंड कैप्चर, यू सीज द लैंड्स। ओके, यू सीज द लैंड। और यहीं पे जब सीज द लैंड की बात बोलेगी तो इंडिया, जो रशियन आर्मी में जो सोल्जर्स थे, दे वांट टू गो बैक टू देयर होम, है ना? दे वांट टू गो बैक होम। क्यों जाना चाहते हैं वापस घर? दे वांट टू गो बैक टू होम टू सीज लैंड्स, कि हमें भी तो ज़मीन मिले, हम यहाँ पे
ड्यूटी करते रह जाएंगे और सारी जमीनें लोग इधर उधर ले लेंगे। करेक्ट। अब होगा क्या, इसकी वजह से आउटकम क्या हुआ, ये देखिए, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुआ, जितने भी नॉन बोल्शेविक्स थे, यानी कि मेंशेविक्स आप कह सकते हो, बट जितने भी नॉन बोल्शेविक्स हैं, all these non bolsheviks, okay, plus the aristocrats, यानी कि पावरफुल मिनिस्टर्स टाइप के लोग जो पहले वाली गवर्नमेंट में थे, ओके, इन ये सब किसके अगेंस्ट हो गए, दे ऑल वेंट अगेंस्ट बोल्शेविक्स, दे ऑल वेंट अगेंस्ट बोल्शेविक्स, ठीक है। और इनके अगेंस्ट में शुरू हो गया एक अपराइजिंग, एक अपराइजिंग शुरू हुआ, लेकिन बोल्शेविक्स ने इसे दबा दिया, राइट। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है आपको तीन चीजों का। पहली चीज है आपकी बोल्शेविक्स। बोल्शेविक्स को अब हम एक नए नाम से जानेंगे, इन्हें कहा जाएगा द रेड्स। तो जब मैं कहूंगा द रेड्स, यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट द बोल्शेविक्स, ओके। इसके अलावा कुछ सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी होंगे, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी, और ये जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी होंगे इन्हें हम कहेंगे द ग्रीन्स, द ग्रीन्स, ओके। तो द रेड्स एंड द ग्रीन्स, और तीसरे एक बीच में आएंगे द वाइट्स, ओके, द वाइट्स। द वाइट्स कौन है, वाइट्स वो हैं हु आर प्रो जार, जो जार का सपोर्टर हैं, जिनका मानना है कि जार अच्छा था और जार होना चाहिए, ओके। तो तीन पार्ट में, द रेड, द ग्रीन्स एंड प्रो जार, द वाइट्स, ओके। तो बोल्शेविक्स को ही द रेड्स कहा जा रहा है, ओके। तो ये जो नॉन बोल्शेविक्स हैं, यानी कि द वाइट्स, द एरिस्टोक्रेट्स, द ग्रीन्स, ये सब एक आर्मी बनाते हैं, दे ट्राई टू मेक एन आर्मी, मेक एन आर्मी, क्यों, टू फाइट अगेंस्ट, टू फाइट द रेड्स, यानी टू फाइट द बोल्शेविक्स, ओके। तो बोल्शेविक्स को फाइट करने के लिए दे मेक दिस, ओके। चलिए, ऑलराइट, तो यहीं तक रखते हैं आज, ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज। सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, दैट इज we are going to see from the same time changes. We have already covered one question, changes, right? So changes we have already covered, and from here we will see how the reds were, you can say, were removed, and we will see एक नए आदमी की एंट्री होगी जिसका नाम है स्टालिन, and he will create a new type of government in Russia। और ये जिस टाइप की गवर्नमेंट बनाएगा उसे हम क्या कहेंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या कहेंगे हम इसे। स्टालिन जिस टाइप की गवर्नमेंट बनाएगा, हिटलर ने जिस टाइप की गवर्नमेंट बनाई, राइट, मुसोलिनी ने जिस टाइप की गवर्नमेंट बनाई, इन्हें हम क्या कहते हैं, ठीक है। हिंट के लिए मैं आपको देता हूँ, एक होता है मोनार्की, एक होता है डेमोक्रेसी, और एक और टाइप की गवर्नमेंट होती है, डी से नाम है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा, ओके। चलिए, यहीं तक रखते हैं आज की बात, और टुमारो वी विल डिस्कस हाउ दिस पार्टी, द रेड, द बोल्शेविक्स, ये पावर में थोड़े कम हो जाएंगे, और सोशल, सॉरी, द स्टालिन विल मेक अ एंट्री, व्हाट डिड स्टालिन डू आफ्टर दिस, ओके, वी विल फिनिश इट टुमारो। चलो, बाकी जिनके एग्जाम्स हैं, आप लोग एग्जाम्स पे ध्यान दो, कल जो एग्जाम है आपका, ओके। दोज हु डोंट हैव एग्जाम, डोंट वरी, आई विल कवर एवरीथिंग टुमारो फॉर यू, पूरा टोटल कवर करेंगे कल, हम इस रशियन रिवॉल्यूशन को खत्म कर देंगे, ओके। चलिए, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ गुड डे।